But the long and the short term impact an invention can have on the environment is what we are talking about. Green inventions are environmentally friendly and often include renewable resources, recycling, safety and health hazards, and many more. I hope this technology will end the cradle to grave cycle of manufactured products by creating products that can be fully reclaimed or reused. I hope it will help in reducing waste and pollution by changing patterns of production and consumption. है ना है अभी हाँ अभी It's okay, I'm good. Let's go! Yeah, yeah, we bring the stars out. We bring the women and the cars out. Let's have a toast, a celebration, get a glass out. And we can do this until we pass out. Let it rain, let it pour away. We won't come down until we hit the ground. Yeah, yeah, I'm in charge now. I'm a star and I brought my fucking cars down. I live a very, very, very wild lifestyle. Heidi and Audrina, eat your heart out. I used to listen to you, don't wanna bring arms out. I've got so many clothes, I keep some in my aunt's house. Disturbing London, baby, we about to branch out. Soon I'll be the king like Prince Charles. Yeah, yeah, and there ain't nobody fresher. Semester to semester, raving with the freshers. 20 light bulbs around my table and my dresser. CLC compressor, just in case that don't impress her. Say hello to Dexter, say hello to Uncle Fester. Got 'em gazing at my necklace and my crazy sun protectors. G-Shocks, I got a crazy dumb collection. Haters, I can't fucking hear your reception. Yeah, we bring the stars out. We bring the women and the cars out. Let's have a toast, a celebration, get a glass out. And we can do this until we pass out. Let it rain, let it pour away. We won't come down until we hit the ground and pass out. Yeah, she was meant to last me 24 hours, right? Yeah, they say hello, they say hola, and they say bonjour. I'm pissed I never got to fly on a Concorde. I've been Southampton, but I've never been to Scunthorpe. I'm fucking crazy with the kicks, call me John Claude. I'm about to be a bigger star than my mum for. Cause every day I got a groupie at my front door. Now I drive past the bus I used to run for. Where's my fucking clap? Where's my uncle? I walk alone, cause I was born alone. I trust her just for fun, I'll never ever call her phone. I leave her in the club, I'll never ever walk her home. D.O. the fucking foundation, I'm the cornerstone. I'm really famous, I'm sorta known. And if your son doesn't, I bet your daughter knows. Check out my visual, check out my audio. Extraordinary, yo, hope you enjoy the show. Yeah, we bring the stars out. We bring the women and the cars out. Let's have a toast, a celebration, get a glass out. And we can do this until we pass out. Let it rain, let it pour away. We won't come down until we hit the ground and pass out. Look at me, I've been a cheeky bastard, man. And look at all the drama we started. Now I'm in here laying on my back, singing DJ, won't you give me one more track?
Our Our aim should be to create a center of economic activity around around technologies and products that benefit our environment, speeding their implementation and creating new careers that truly protect the planet. Mother Earth gives her gifts for all to share. She gives them freely, yet she's still aware that things are changing, perhaps for the worse. How much more can she give if our future is cursed? It's way past time to put Mother Earth first, to clean up the water before we all thirst, to clean up the air before our lungs sicken, to renew the soil and feel it quicken. How long until the point of no return? How much longer until we all finally learn that to this task we all must rise and stop abusing Mother Earth before she dies? We the Dipsides appeal one and all to take care of this beautiful and unique planet. Save Earth, save life. We now move on to the next highlight of our day. The Natyakas presenting a comedy, Dharmaraj Ka Darbar. परिवर्तन संसार का नियम है। फ्रॉम द स्टार्स के साथ आपने आने वाला भविष्य इस कार्यक्रम में देखा। आइए आकाश में इन्हीं सितारों के बीच सजे आज के धर्मराज के दरबार में चलते हैं और देखते हैं कि आज के युग के धर्मराज के दरबार में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं और वहाँ का कामकाज कैसा चल रहा है। धर्मराज की जय, धर्मराज की जय। स्ट्रेंज निकिता, ये तुम क्या कह रही हो? धर्मराज की बात, और वो भी आज की? आज के जमाने में तो उसके अस्तित्व को कोई नहीं मानता। मानने न मानने से क्या होता है? जो हमारे पुराणों में लिखा है उसे बदला तो जा नहीं सकता। ओह, तो तुम अब मुझे धार्मिक प्रवचन सुनाने वाली हो? ओहो, तुमने मेरी बात को ध्यान से समझा ही नहीं। मैं तो तुमसे आज के धर्मराज की बात कर रही हूँ। आज के जमाने में जब धर्मी नहीं रहा तो राज कहाँ से आएगा? तो तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं। चलो, आज मैं तुम्हें धर्मराज के दरबार में ले चलती हूँ। सावधान, मेहरबान, कदरदान, होशियार, खबरदार। ये है धर्मराज का दरबार और मैं हूँ यहाँ का पहरेदार। महाराजाधिराज धर्मराज अपनी शान, बान और जान के साथ पधार रहे हैं। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? जरा देखकर तो बोलो। क्यों? मैंने क्या गलत कहा? सही तो कहा। महाराजाधिराज धर्मराज अपनी शान, बान और जान के साथ पधार रहे हैं। अरे लेकिन यहाँ तो केवल महारानी जी ही है, महाराजा जी तो कोई है ही नहीं। क्या कह रहे हो? पिटवाओगे क्या? तुम्हारी आंखों का नंबर बढ़ गया है क्या? वजन? किसका वजन बढ़ गया? किसके बारे में बातें हो रही हैं सैनिक? कुछ नहीं महारानी जी, वो तो हम बस आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। होशियार, खबरदार, पहली घोषणा में हुआ कुछ सुधार। क्या सुधार? किसका सुधार? कैसा सुधार? मैं बताती हूँ। क्षमा कीजिए, आज धर्मराज जी दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाएंगे। वो क्या है ना कि उनको अपने नए-नए मैकबुक में नए-नए डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड करने का भूत सवार हुआ है। क्षमा कीजिए महारानी जी,
छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन धर्मराज जी और मैकबुक कनेक्शन कुछ समझ नहीं आया। धर्मराज जी को मैकबुक बनाने की क्या आवश्यकता है? उनका सब लेखा जोखा तो उंगलियों पर ही हो जाता है। और रहा सहा हिसाब किताब, वो तो चित्रगुप्त जी ही संभालते हैं। अरे भाइयों समझो, अब महाशय धर्मराज जी की उम्र हो चली है और चित्रगुप्त जी अपने वही कदम छिप ही जाते हैं। खामोश! ये क्या कह रहे हैं आप सभी? क्या आपको महाराज की काबिलियत पर संदेह है? वे तो आधुनिक तकनीक का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तकनीकी का इस्तेमाल कर अपना डेटा सेव रखना चाहते हैं ताकि कुछ डिलीट ना हो जाए। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात, तकनीकी और राजनीति एक साथ, क्या बात क्या बात क्या बात। बिना बताए दरबार में अनुपस्थित रहने के लिए महाराज की ओर से मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। आप सभी की आज्ञा से आज मैं उनका कार्यभार संभालूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस हेतु आप आज्ञा नहीं, आपका स्वागत है देवी। आजकल की स्त्रियां क्या पुरुषों से कम है? पुरुष तो कठपुतली बनकर रह गए और मौन हो। सत्यवचन बिल्कुल सही है ये कथन। नारी तेरे रूप अनेक, मन से करती कार्य प्रत्येक। भोला भाला सुंदर वदन, कर्म समर्पित तन मन धन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्त्रियों के विषय में आपके विचार जानकर हम फूले नहीं समा रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत हो गई तारीफ, अब जरा दरबार के कामकाज पर ध्यान दिया जाए। चित्रकूट जी, जरा आज का टाइम टेबल तो बताइए। ओहो महारानी जी, चित्रकूट नहीं, चित्रगुप्त चित्रगुप्त चित्रगुप्त। अरे हाँ चित्रकूट जी, ओहो व्हाटएवर। पता नहीं है कब मेरा नाम ढंग से पुकारेगी, रोज वही गलती किया करती है। अब आप ये सब छोड़िए और आज का टाइम टेबल बताइए। आज का टाइम टेबल? लेकिन आप मेरा नाम तो पुकारिए। आज तो मैं यही कह रहा था महारानी जी कि आज तो 5 अरे नहीं 4 देशों से दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और आगरा से जीव लाने हैं। अच्छा ठीक है, जरा दूध को बुलाइए। आपने सुना नहीं? दूध को बुलाइए। पहरेदारों, दूध को बुलाओ। होशियार खबरदार, मैं हूँ यहाँ का पहरेदार। ये है धर्मराज का दरबार। उत्तर व पश्चिम भारत का दूत दरबार में उपस्थित हो। होशियार खबरदार, मैं हूँ यहाँ का पहरेदार। ये है धर्मराज का दरबार। उत्तर व पश्चिम भारत का दूत दरबार में उपस्थित हो। दूत उपस्थित है सरकार। तुम सो रहे थे? ओह आलसी कहेंगे। पर ये तो बताओ, तुम्हें सोने का वक्त कहाँ से मिल गया? हर पल कोई ना कोई तो मर ही जाता है और तुम्हें उसके जीव को लेने के लिए पृथ्वी पर जाना पड़ता है। नहीं महारानी जी, ये आंकड़े तो पुराने हो गए। आजकल मेडिकल साइंस की तरक्की के कारण लोग मरते ही नहीं, तो फिर मैं सो जाता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? मेडिकल साइंस और मृत्यु का क्या कनेक्शन है? आजकल हर रोग का इलाज संभव है, इस कारण लोग मरते ही नहीं। और कुछ क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं तो उन्हें डॉक्टर लोग लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर डाल देते हैं। इसके कारण उनकी एज 2 दिन बढ़ जाती है। ऐसा कैसे चलेगा? यदि जीव नहीं मरेंगे तो हम काम क्या करेंगे? खैर, इस मसले पर हम बाद में विचार करेंगे। अभी तो तुम आज के जीवों का नाम पता लेकर जाओ और उन्हें जल्द दरबार में लेकर आओ। चित्रकूट जी से सभी जीवों का नाम पता ले लीजिए। महारानी जी, चित्रकूट नहीं, चित्रगुप्त चित्रगुप्त। खैर छोड़िए। अरे हाँ चित्रकूट जी, ओहो व्हाटएवर। ऑलवेज व्हाटएवर, अपनी गलती तो सुधारती नहीं। खैर व्हाटएवर। अब तुम्हें क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? यहाँ और चारों जीवों के डिटेल्स लेकर जाओ। हाँ अभी आए चित्रकूट जी। अरे मेरा मतलब चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी? नहीं नहीं, मेरा मतलब था चित्रगुप्त जी अपनी पोतली खोलकर उनमें से सभी डिटेल्स निकालकर दूत को दे देते हैं। दूत डिटेल्स लेकर जाता है और सभी जीवों को ले आता है। पहरेदार उसके आने की सूचना महारानी को देता है। सावधान, होशियार खबरदार।
ये है धर्मराज का दरबार। दूत सभी जीवों को लेकर आ गया है। दूत को सभी जीवों के साथ दरबार में उपस्थित किया जाए। दूत उपस्थित है सरकारनी जी, आपकी जय हो। ये सरकारनी क्या होता है? महाराज धर्मराज हमारे सरकार है, तो आप हमारी सरकारनी हुई ना। चुप, बिल्कुल चुप। हमें सिर्फ और सिर्फ महारानी जी बुलाया जाए। अच्छा, सिर्फ महारानी जी? ओफो, अब ये सिर्फ लगाने की क्या जरूरत थी? केवल महारानी जी। जो हुक्म, केवल महारानी जी। ऐसे नहीं, बस सिर्फ केवल कुछ भी नहीं, महारानी जी बोलो। जो आज्ञा, महारानी जी बोलो। हे भगवान, इसे समझाना बेकार है। अच्छा तो तुम ये बताओ, वे सभी जीव कहाँ हैं? वे सभी जीव बाहर खड़े हैं, अंदर आने के लिए आपकी परमिशन चाहते हैं। सभी जीवों को अंदर बुलाया जाए। पहरेदार, सभी जीवों को दरबार में बारी बारी से वेलकम किया जाए। क्षमा कीजिए मंत्री जी, लेकिन दरबार में कहीं भी मेरा मतलब खिड़की नहीं है, तो कहाँ से पेश करूं? हे प्रभु, पहरेदार जी, बारी बारी का अर्थ है 1 by 1 सभी जीवों को दरबार में पेश किया जाए। ठीक है, अब समझ में आया? समझे? जी जी बिल्कुल। क्षमा कीजिए मंत्री महोदय, परंतु हमें क्या पता कि किसकी बारी पहले। ये तो चित्रकूट जी, नहीं मेरा मतलब चित्रगुप्त जी ही बता सकते हैं। महाराज, आप कहाँ हैं? आपकी एब्सेंस में तो इस दरबार में सब मेरा नाम गलत ले रहे हैं। अरे चित्रगुप्त जी, नहीं चित्रगुप्त जी, आप नाम को छोड़िए और काम कीजिए। अब ये बताएं, सबसे पहले दरबार में कौन आएगा? मंत्री जी, बहुत हो गया। मेरा नाम चित्रकूट नहीं, चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त। और रही बात जीवों की, तो सबसे पहले दिल्ली की डॉक्टरानी साहिबा के जीव को दरबार में उपस्थित किया जाए। दिल्ली से आई डॉक्टरानी का जीव दरबार में उपस्थित हो। डॉक्टर रानी का जीव उपस्थित है महाराज। अरे मेरा मतलब महारानी जी। ओहो, लीव मी, छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री से कह के तुम्हें जेल में भिजवा दूंगी। एंड बाय द वे, हु आर यू? एंड मैडम। ओ मैडम, हेलो, आई एम महारानी ऑफ धर्मराज। दिस इज धर्मराज का दरबार एंड यू आर डेड नाउ, सो आई एम द ओनली मुख्यमंत्री एंड आई एम द महारानी। ओके? ये तुम क्या कह रहे हो? आई एम डेड। लेकिन मैं गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल जा रही थी, तभी अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया। OMG, तो क्या सच में मर गई? अब मेरा हॉस्पिटल का क्या होगा? उसकी तो सारी पोल खुल जाएगी, और मैंने तो कोई अरेंजमेंट भी नहीं की है। तुम्हें तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ तुम्हारा सारा रिकॉर्ड है। तुमने कितनों की किडनियां बेची, कितनों के बच्चे बेचे, अपने जीवन साथी और अपने मित्र को किस प्रकार धोखा दिया, यहाँ तुम्हारा सारा लेखा जोखा है। हाँ, तुमने अपने जीवन में केवल एक ही अच्छा कार्य किया था, और वो था पशुओं के प्रति अपना लगाव दर्शाना। तुम तो सदा रात की रोटियां बचाकर सुबह अपने कुत्तों को दे देती थी। तो इसके लिए कौन सी जगह सही रहेगी चित्रकूट जी? अरे नहीं, महारानी जी, चित्रगुप्त बुलाइए ना प्लीज। अच्छा, तो आप चित्रगुप्त है? मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। चित्रकूट जी, अरे नहीं, मेरा मतलब चित्रगुप्त जी, कुछ ले देकर बात नहीं बन सकती क्या? देखिए, आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगी आपके लिए। आई एम सॉरी डॉक्टर रानी साहिबा, ये पृथ्वीलोक नहीं, यमलोक है, और ये है धर्मराज का दरबार, जहाँ अभी तक कोई अधर्म नहीं होता। तो फिर बताइए, मेरे लिए क्या सजा है? मुझे गरम तेल में मत डालना प्लीज, मेरी सारी स्किन जल जाएगी। तो बताइए चित्रकूट जी, कहाँ जाएंगी डॉक्टरनी साहिबा? महारानी जी, चित्रगुप्त। और रही बात इनके सजा की, तो इन्हें तो सदा के लिए नरक बनता है, परंतु पशुओं के प्रति लगाव दर्शाने के कारण 5 वर्ष स्वर्ग के भी बनते हैं। तो एक काम करिए, आप पहले इसे स्वर्ग में भेज दीजिए, वहाँ अभी लेडी डॉक्टर की खूब कमी है। 5 साल बाद नर्क में भेज देना। जो आज्ञा महारानी जी, दूत इसे स्वर्ग में भेज दिया जाए। जो आज्ञा चित्रगुप्त जी। अरे आइए डॉक्टर रानी। अगले जीव को वेलकम किया जाए। नेता का जीव उपस्थित है। अरे ओ बचुआ, ये आपका कहाँ ले आए हो? हम कहाँ हैं? हमारा फैमिली, हमारा बाल बच्चा लोग हमारा राह देखता होगा।
भाई अभी सारी मीटिंग यहीं अटेंड कीजिएगा। जरा इनका भी लेखा जोखा बताइए चित्रकूट जी। महारानी जी, चित्रगुप्त और नेता का क्या लेखा जोखा हो सकता है? इन्होंने तो सबसे 2 कदम आगे इतने कांड, इतने स्कैम्स, इतने स्कैंडल्स किए कि बेचारा उत्तर प्रदेश आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, तरक्की ही नहीं हो रही। अरे चित्रगुप्त जी, देखिए हम तो का नाम भी सही पुकारा हूँ, कम से कम इसी बात पर हम तो कछु नाम कीजिए। हमारा नाम सही या गलत पुकारने से कछु नहीं होते नेताजी, वो तो अपना काम सही या गलत करने से होते। नेताजी यहाँ से चले जाइए, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं न गलेगी। दूत इसे नरक में भेज दिया जाए। जो आ गया। अरे भाई अभी नरक में ही मजा करना। अगले जीव को पेश किया जाए। अरे अरे भैया ध्यान से चलिए, कहीं आपको लगी तो नहीं? और आप ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? मैं कहाँ हूँ? मैं तो अनाथ आश्रम बच्चों के साथ खेल रही थी, वहाँ पे मीडिया वाले भी आने वाले थे। अरे मेरा मिरर कहाँ है? अब मैं अपनी शक्ल कैसे देखूंगी? अरे सुंदरी, कितनी सुंदर हो तुम। दूत, ये तुम क्या कह रहे हो? इस दरबार में मेरे रहते हुए तुम किसी और की प्रशंसा कर रहे हो? जाओ, चले जाओ दरबार से। अरे अरे क्षमा कीजिए महारानी जी। तुम कौन हो कन्या? मैं भारत की बेटी हूँ। सन 1998 में मिस वर्ल्ड बनी थी। मेरे माता पिता नहीं थे। मैं अनाथ आश्रम पढ़ी और नौकरी करते करते मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मेरे अच्छे स्वभाव और व्यवहार तथा सही समय पर सही उत्तर देने की कला के कारण मुझे मिस वर्ल्ड बना दिया गया। बस तभी से मैं बच्चे, बूढ़े और औरतों की सेवा करती आई हूँ। सत्य वचन महारानी जी, सत्य वचन। ये बिल्कुल सही कह रही है। अपने जीवन में अच्छाई के अतिरिक्त इन्हें तो और कोई कार्य ही नहीं किया। इन्हें तो देवलोक की अप्सरा बना देना चाहिए। तुम सही कहते हो चित्रगुप्त। धन्यवाद देवी, आज आपको देखते हुए महारानी जी ने पहली बार मेरा नाम सही पुकारा। धन्यवाद देवी, धन्यवाद महारानी जी। दूत, तुम कहाँ हो? दूत इधर है। इस सुंदरी को देवलोक भेज दिया जाए और अगले जीव को प्रस्तुत किया जाए। आओ सुंदरी, आओ। पत्रकार का जीव उपस्थित है। अरे भाई, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? यहाँ कितनी शांति है, ना कोई हो हल्ला, ना कोई भीड़ भाड़। मैं तो पब्लिक के बीच में पानी को लेकर हो रहे झगड़े की रिपोर्ट तैयार कर रही थी, और तभी अचानक पुलिस की गोली चली। और तो क्या मैं मर गई? मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? और मेरी डायरी कहाँ है? वही तो मेरी रोजी रोटी का जरिया है, वही मेरा जीवन है। अरे भाई, कैसी रोजी रोटी? अब तुम मर चुकी हो और अभी धर्मराज के दरबार में खड़ी हो। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? अब मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा? उनका इलाज कौन करवाएगा? तुम्हें तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ भी बहुत जल्द यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु की खबर उन्हें भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रख पाएगी। और उनके आने के पश्चात तुम दोनों अपना जीवन सुख से स्वर्ग में बिताना। दूत, इन्हें स्वर्ग में भेज दिया जाए। जो आ गया। स्वर्ग में? केवल स्वर्ग में? ऐसा कैसे और क्यों? वो क्या है ना महारानी जी, इन्होंने तो अपने जीवन में ज्यादा कोई बुरे काम किए नहीं, और यदि कोई किए भी हो तो इनकी अपने माँ के प्रति भक्ति और माँ के प्रति अच्छी भावना के कारण ये दोनों स्वर्ग के ही भागीदार हैं। तुम सही कहते हो चित्रकूट। ओह, मेरा मतलब चित्रगुप्त जी, माता पिता की भक्ति और औरों के प्रति अच्छी भावना, ये दोनों ही ऐसे काम हैं जो बड़े से बड़े पाप को भी धो देते हैं। लेकिन पृथ्वी पर अब ऐसे लोग बहुत कम हैं जो औरों के प्रति अच्छी भावना रखते हो। चलिए चलिए, आज का दरबार यहीं समाप्त हुआ, तो क्या सभा को यहीं स्थगित किया जाए या कोई और काम बचा है? अरे महारानी जी, एक बहुत बड़ी गड़बड़ पकड़ में आई है। ये मुझसे क्या और कैसे हो गया? क्या हुआ चित्रगुप्त? मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्या हुआ? क्या कोई बहुत बड़ी गड़बड़ पकड़ में आई है? समस्या तो बड़ी प्रबल है देवी, जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो गया है। सेठ किरोड़ीमल का जीव कहीं खो गया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा घपला आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन अब हो गया है।
5 दिन पहले प्राण तजे, परंतु उसका जीव अभी तक यहाँ नहीं आया। महारानी जी, सेठ किरोड़ीमल का भी जीव राजस्थान से आने वाला था, परंतु अभी तक नहीं आया, क्योंकि मैंने उसे लाने के लिए किसी को नहीं भेजा। दूत को दरबार में उपस्थित किया जाए। दूत उपस्थित है। जाओ, सेठ किरोड़ीमल के जीव को भी दरबार में लेकर आओ। जो आगे चित्रगुप्त जी। अरे मेरा मतलब चित्रगुप्त जी। क्या जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लोगों को उनके कर्मों के अनुसार स्वयं धर्मराज नर्क या स्वर्ग अलॉट करते आ रहे हैं? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अब क्या होगा? हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई, नाक कान सब कट जाएंगे। नहीं महारानी जी, आपके नाक और कान कैसे कटेंगे? वो तो लक्ष्मण जी शूर्पणखा के पहले से ही काट चुके हैं। सही बात है। चुप रहिए, आप सबको कुछ नहीं पता है। दरबार में इस घटना पर डिस्कशन तो हो ही रहा था कि अचानक एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। नारायण नारायण यो, नारायण नारायण यो, नारायण नारायण यो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे मुनिवर, आज यह धर्मराज नहीं है, मैं हूँ। आज मैं उनके स्थान पर उनका कार्यभार संभाल रही हूँ। आपने तो ध्यान ही नहीं दिया, बस धर्मराज की जय बोल दिया। कोई बात नहीं देवी, मैं आपकी भी जय बोल देता हूँ। महारानी जी की जय हो, महारानी जी की जय हो। बस अब तो ठीक है। अच्छा, एक बात तो बताइए, आपने ये हेलमेट पहनना कब से शुरू कर दिया? ये तो पृथ्वीवासी पहना करते हैं। अरे महारानी जी, आपको तो पता ही है, पृथ्वी की तरह आजकल आकाश में भी कितना ट्रैफिक बढ़ गया है। कभी एरोप्लेन, कभी रॉकेट, तो कभी हेलीकॉप्टर। अब अपनी सुरक्षा तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। तो क्या आप भी पृथ्वी की ट्रैफिक की समस्या से परेशान हैं? अब ये सब छोड़िए और यह बताइए, महाराज किस कार्य में व्यस्त है? क्या बताऊं, जहां आप पृथ्वी की ट्रैफिक की समस्या से त्रस्त हैं, वहीं पे पृथ्वी की आधुनिक तकनीकों को अपनाने में व्यस्त हैं। अच्छा, पृथ्वी की तकनीक यहाँ तक पहुँच गई। महारानी जी, आपको क्या हुआ? आपका मुंह फूला हुआ है? क्या कोई यमलोक में निवास स्थान की समस्या हल नहीं हुई? नहीं मुनिवर, वह समस्या तो कब की हल हो गई। पिछले 3-4 वर्षों में बड़े बड़े इंजीनियर, ठेकेदार, ओवरसियर, जिन्होंने सरकारी पंचवर्षीय का बहुत पैसा खाया है, वे सभी तो नर्क में आ गए हैं। उन्होंने नर्क में रहने की समस्या को हल कर दी है। अब तो 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और टेनामेंट्स की कोई कमी नहीं है। तो फिर क्यों गुब्बारे जैसा मुंह फुलाया है? क्या कहे ऋषिवर, आज तो हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। पाप पुण्य का निर्धारण किए बिना ही एक जीव की आत्मा गायब हो गई है, और तो और हमारा दूध भी गायब है। कहीं सोया पड़ा होगा। हाँ, आलसी कहीं का। लगता है महाराज ने तकनीकी की सहायता लेने की बात सोचकर बिल्कुल सही निर्णय लिया है। तकनीक कैसी? महाराज के पास बही खातों की कमी है जो ये मैकबुक और ले आए? ऋषिवर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैकबुक कोई बही खाता या किताब नहीं है, ये तो कंप्यूटर का नया रूप है। महारानी जी, अब क्या होगा? वैसे ही वर्कलोड इतना बढ़ा हुआ है, और न जाने सेठ किरोड़ीमल की आत्मा कहाँ चली गई है। हेलो, हाँ ब्रह्मा जी, मैं पहुंचता हूँ। हाँ। धर्मराज, धर्मराज! अरे मूर्ख, आंखें खोल कर देख तो सही, सिंहासन पर कौन विराजमान है? अरे क्षमा कीजिए महारानी जी, मुझे लगा महाराज धर्मराज होंगे। छोड़ो ये सब कुछ, पहले तुम ये बताओ कि अब तक तुम कहाँ थे और सेठ किरोड़ीमल की आत्मा कहाँ है? नालायक, क्लास वर्क ही ठीक से नहीं करता तो होमवर्क क्या खाक करेगा? क्षमा कीजिए महाराज।